Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In this today's video, I'm gonna telling you are NCRTs really important for the psychology preparation, and if yes, then how, and if not, then how you can finish these NCRTs in a very quick manner, and how you can utilize all the information you've gathered from the NCRTs to reach towards the higher order books, जिसका मैंने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं, ये आगे आप देखोगे भी, right? So before this starting video, as you know, my ongoing preparation batch is live right now, which is the Mahayodha batch. In this batch, you will get the complete comprehensive access to everything which is mentioned by Vipul sir and which is mentioned by me in lot of videos about the free mock test, live classes, PPTs, notes, live recordings of all the classes, and the most important thing, right? What? You will be getting access to our all courses related to psychology, which I'm going to launch in this very year and next year before the 2026 examinations, right? So by purchasing this single batch, you will be having access to every other batch which we are going to launch in the coming time. All right. So before wasting any time, let's start the video. So is it why NCRT is important? Then I'll show you the proofs कि NCRTs कैसे पढ़नी है आप लोग को और किस तरह से आप उसको जल्दी से go through कर सकते हो. Firstly, the most important thing, you have to understand what is the perspective of NTA. NTA is the government agency, right? So NTA being a national agency, which is like national testing agency, उसे ये चीज ensure करनी है that there is a equitable distribution of resources, right? अब इसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, सिंपल से है that it needs to ensure a fair competition, right? कैसे? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे उनके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं है एजुकेशन का. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू वेरी रिच यूनिवर्सिटीज, वेरी बिग यूनिवर्सिटीज जिनके पास बहुत अच्छे प्रोफेसर्स है, राइट? एंड सम देयर आर पीपल हु आर नॉट वेल फाइनेंशियली चार्ज, दे आर नॉट सो मच गुड विद द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, राइट? सो हर एक चीज को उसे बैलेंस करना है, राइट? सो हाउ इट कैन डू दैट? It will ensure that the questions, right, which are asked in the exam, they are from the resources which are available to all, right? And you know, these are NCRTs, right? You know, these are very low cost books, but they are easily available to any bookshop in the India, right? आप लोग में भी जो बैरन सिसरेली ये सब बुक्स पढ़ रहे हो, मे बी आपके सिटी में ये बुक्स अवेलेबल ना हो, राइट? बट ये एनसीईआरटीज आपको हर बुक स्टॉप पे मिल जाएंगी, राइट? सो देयर इज अ रीजन कि क्यों एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, राइट? बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस, एंड आप लोग देखे होंगे ऑब्वियसली कि एनसीईआरटीज को कवर कर लेने से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सीयूईटी के सॉल्व हो जाते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दीज एनसीईआरटीज आर ऑफ 11th एंड 12th क्लास, है ना? बट आप बीच में 3 साल का या 4 साल का यूजी करते हो, राइट? So what is this 3 year and 4 year knowledge? There must have been something which is added on the knowledge of the NCRTs. So ये knowledge बहुत ज़्यादा detailed नहीं होती है, बहुत ज़्यादा comprehensive नहीं होती है. It is more or less the practical aspect, the applied aspect for these NCRTs content. Right? I'll show you. मैं आप लोग को indexes दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या topics होते हैं NCRTs में, which you will find even in the like famous so-called international and western books, right? जो आप लोग के यूनिवर्सिटीज में चलती होंगी. एंड आई टेल यू द प्रॉब्लम विद एनसीईआरटीज जिसकी वजह से बच्चे उतना एनसीईआरटीज को रिकमेंड नहीं करते, राइट? जस्ट वेट. ओके, ऑलराइट. सो ये क्लास की एनसीईआरटी है. आई ओपन इट फॉर यू. सो बेसिकली दिस इज क्लास 11th एनसीईआरटी, राइट?
This is class 11th NCERT. अब आप लोग इसमें एक चीज नोटिस करो that I'll show you the index for this book. These are the fundamental rights जो आपको ऑलमोस्ट हर बुक में मिल जाएंगे. Fundamental duties and here it is. This is the index. Just a second, it's loading. Right. All right. Here is the content. Right. Now let's see what is all about this. Right. What is psychology? Basic part. This is the most important part. Right. ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, बहुत important है. Then methods of inquiry in psychology. These are basically psychological methods. Right. ये psychological methods हैं. इनसे बहुत सारे questions आते हैं. Basis of human behavior. This is also one of the important topics. इससे एनटीए बहुत क्वेश्चंस पूछती है. Human development. This is nothing but developmental psychology. Sensation, attentional perception. All these are the golden triad for NTA. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. Right. Then learning, classical conditioning, Thorndike, आपका वॉटसन कराट एक्सपेरिमेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिवॉर्ड पनिशमेंट, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सब कुछ इसका पार्ट है. अगेन फेवरेट पार्ट ऑफ एनटीए. राइट. फिर आपका आता है ह्यूमन मेमोरी. ह्यूमन मेमोरी में भी आपकी जितनी भी थ्योरीज हैं मेमोरी रिलेटेड, राइट, दीज ऑल कम अंडर दिस थिंग. आपके एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल, बार्टलेट का वर्किंग मेमोरी मॉडल, टल्विंग के कंसेप्ट, सब कुछ इसमें आता है. थिंकिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कॉन्शियसनेस, फॉर द क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल दीज थिंग्स, मोटिवेशन एंड इमोशन. अगेन आई डोंट हैव टू मेंशन दीज टॉपिक्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके. जेम्स प्लांट की थ्योरी, कैनन बार्ट की थ्योरी, शाटर सिंगर की थ्योरी. In the motivation, you have Herzberg's theory, then you have McLeland's theory, you have Maslow's theory. There are so many theories in this topic, right? But what is the problem with the NCRTs? Let me share it to you. This is the problem with NCRT. I hope what you like. I hope you get it. These books are very monotonous, right? कोई ऐसा पिक्चर नहीं है, कुछ ऐसा कलर नहीं होता है बहुत ज्यादा. These are like monotonous. And this is the biggest problem that students face. They get really bored. बहुत जल्दी वो bored हो जाते हैं इससे, right? So, but the point is कि आपको NCERTs पढ़नी पड़ेंगी because there is no option, right? अब there is always an option, right? Options किनके लिए है? People who are from psychology background, right? So आप लोग को NCERTs पे उतना रिलाई करने की जरूरत नहीं है. If you start with the standard books like Cicerelli, Barron, Morgan, it will be good. If and only if आपको बुक्स की लैंग्वेज समझ आ रही है, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है, राइट? इमेजिन करो एक 11th क्लास का बच्चा है, उसे साइकोलॉजी समझानी है. सो दीज बुक्स हैव बीन रिटन इन अ वेरी इजी मैनर, राइट? सो अगर आपको लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम नहीं है, सो स्टार्ट विद एनसीईआरटी. जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, राइट, अगर उन्हें इंग्लिश में स्विच करने में प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें साइकोलॉजी पढ़ना है, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन. स्टार्ट विद एनसीईआरटी. आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश भी सीख जाओगे एंड यू विल बी हैविंग अ गुड कमांड ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफी इजी होती है. सेकेंडली, दोज हु आर फ्रॉम नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड, यू मे फील डिफिकल्टी विद द स्टैंडर्ड बुक्स एट फर्स्ट. नहीं होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको अगर होती है प्रॉब्लम तो स्विच विद एनसीईआरटी, राइट? सो एनसीईआरटी में केवल 11th और 12th की आपको बुक पढ़नी है एंड दे आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट और फ्रॉम द अमेज़न. आराम से आपको 200-300 रुपए में दोनों बुक्स मिल जाएंगी, राइट? आई थिंक 150 या 200 की एक बुक है, इससे भी सस्ती होगी आई थिंक, राइट? तो आपको ये दोनों बुक्स आराम से मिल जाएंगी. लेट मी शो यू द क्लास 12th एनसीईआरटी इंडेक्स, राइट? जस्ट अ सेकंड. This is class 12th NCERT. All right, let me show you. And फिर I'll tell you कि इसमें कंटेंट में क्या डिफरेंस है. Okay, this is the start.
Just wait. All right. This is the content section, the index. Variations in psychological attributes. So this whole book majorly focuses on social psychology. ठीक है, ये मेजरली आपकी सोशल साइकोलॉजी पे फोकस करती है ये पूरी बुक. ठीक है. यू विल सी सेल्फ एंड पर्सनालिटी. पर्सनालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीयूईटी. यू मस्ट हैव सीन सो मेनी क्वेश्चंस बीन आस्क्ड फ्रॉम पर्सनालिटी टॉपिक, राइट. मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. डेली लाइफ में साइकोलॉजी किस तरह से प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, ये सब के बारे में. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अगेन क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका. थेरेपेटिक अप्रोच, दे आर रेड टुगेदर, राइट. इसमें आप लोग डिसऑर्डर्स को पढ़ोगे, राइट, प्लस उनका रिलेटेड जो उनकी थेरेपीज होती हैं उनको आप पढ़ोगे. सो ये रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं. देन एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस. सोशल इन्फ्लुएंसेस में जैसे कॉम्प्लायंस, कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस, ऑल दीज थिंग्स, ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप पोलराइजेशन, डी इंडिविजुएशन, राइट. ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे. साइकोलॉजी इन लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ, पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव माइंडसेट, राइट. ये सब चीजें इसमें पढ़ोगे. डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है जो कि आपके जो काउंसलर से रिलेटेड चीजें होती हैं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आप इन टॉपिक्स पे बेसिकली पढ़ते हो. माय पॉइंट इज 11th एंड 12th एनसीईआरटीज अगर आपने गो थ्रू कर ली, सो यू विल गेट अ होलिस्टिक आइडिया अबाउट व्हाट इज साइकोलॉजी, एंड दिस विल बी अ बेस्ट एंड चीप सोर्स for those people who are facing little bit problem with the language or with the cost of standard books, because जो standard books होंगी आपकी साइकोलॉजी की वो 600-700 रुपए से मिलती हैं, राइट, जो अच्छी खासी होती हैं. इवन दो दे आर नॉट ओरिजिनल बुक्स, ठीक है, वो हार्ड कॉपी प्रिंटेड बुक्स होती हैं, तो आपको 500-600 रुपए मिलेंगे. अगर आप उनको कहीं आपको पीडीएफ मिल जाता है, आप उनको प्रिंट आउट करा लेते हो, तो देन ऑल्सो दे विल कॉस्ट यू 300 to 400 रुपीज, राइट. सो माई पॉइंट इज कि आप अगर एनसीईआरटीज गो थ्रू कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट का मटेरियल बहुत थोड़े टाइम में मिल जाएगा. बट द ओनली प्रॉब्लम इज दिस थिंग, राइट, ये काफी ज्यादा मोनोटोनस होती है बुक्स. जस्ट वेट, लेट द बुक, सी दिस इज बहुत मोनोटोनस होती हैं बुक्स आपके लिए, राइट. फोबियाज के बारे में है, स्पेसिफिक फोबियाज, एंजाइटी, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, राइट. ये सब इन्हीं के पार्ट्स होते हैं. तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, ठीक है. सो दैट्स ऑल. सो इन अ नटशेल, इन अ कंक्लूजन, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर कंफर्टेबल विद द स्टैंडर्ड बुक्स, गो विद द स्टैंडर्ड बुक्स. बट अगर आपको उनमें प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज. ऑलराइट. सो अगेन, we'll see you in the next video with some more information related to preparation. I'll be keep uploading the videos, and stay tuned with the channel, subscribe to the channel. And again, if you want to prepare your psychology preparation, you want to start and you want to give a green light to your preparation, this is the right time. Because again, ये मत सोचना कि नवंबर दिसंबर में आराम से प्रिपरेशन करेंगे, हमें तो सिर्फ 3 महीने चाहिए. हमने किसी टॉपर का वीडियो देखा था, उसने 2 महीने में प्रिपेयर कर लिया था. नो, 2 महीने में साइकोलॉजी सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है, बट नॉट फॉर द साइकोलॉजी. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे but still are confused between mind and behavior, which still are confused between what is mind and what is brain, still confused between what is stimulus and what is response, है ना. तो ये सारी चीजों को काउंटर करने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है, काफी एफर्ट चाहिए होता है. सो राइट नाउ यू कैन गिव योर एफर्ट्स, राइट नाउ यू हैव द टाइम. ऑलराइट. थर्ड ईयर जैसे ही 2026 लगेगा, थर्ड ईयर के एग्जाम्स होंगे, फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल फाइल्स होंगी, वाइवा होगा, और उसी में प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा लोड होगा. Alright, so this is the right time. You can join my course from the description. Download the Study Capital app from the Play Store, and here you will see the batch, and you can join, attend live classes right away from the first day. See you soon in the next video, and see you soon in the class.